Hello everyone. Welcome you all to the Made Classes by Made Mastermind. Finally, we are going to start the new series which I have announced a few days ago. The Materia Medica one page series, the homeopathic Materia Medica. We will be making it easier. First of all, the format will be that we will be studying each drug without remembering its symptom. We will portray the drug as a human being, right? So, as a story, as a life journey, we will be completing. After that, we will see the drug in a single page, both from Allen and from the Boric. Just I am showing you all. Here, look, here it is the entire the as a portrait as a human being. How is the drug? And here, after that, we will see the Allen's keynote in one page and the entire Boric in one page. So, as like, and I think it will be very much easier. So, just listen to me. मेरे को बस सुनते जाइए, याद रह जाएगा. So, a very good morning to everyone. First of all, today we are going to start a drug. फर्स्ट उससे पहले मैं आज आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. तो क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत लविंग हो, सबसे जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता हो, दूसरों के दुख से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, लेकिन अंदर से बहुत वीक और एग्जॉस्टेड हो? या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो डार्कनेस से डरता हो, अकेले रहना पसंद ना करता हो, वो बिजली थंडरस्टॉर्म से घबराता हो और कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी कंपनी की ज़रूरत महसूस करता हो? कंपनी मतलब यहाँ पर किसी के साथ का ज़रूरत महसूस करता हो. अगर आपने ऐसा पेशेंट देखा है तो हो सकता है, वो कंफर्म नहीं, हो सकता है कि आपने एक वर्किंग फॉस्फोरस देखा हो. सो गाइस, आज हम सिर्फ एक मेडिसिन नहीं पढ़ने वाले हैं, हम एक पर्सनालिटी को पढ़ने वाले हैं. Phosphorus is one of the most beautiful, brilliant and deeply acting constitutional remedy of homeopathy. इसका एसेंस समझना है तो बस मैं बोलता जा रहा हूँ, आप इमेजिन करते चलिए. इसका एसेंस समझना है तो एक बर्निंग मोमबत्ती, एक बर्निंग कैंडल को इमेजिन कीजिए. जो कैंडल ब्राइट लाइट देती है, सबको अट्रैक्ट करती है, सबको वार्मथ देती है, लेकिन जैसे जैसे वो खुद जलती है वैसे वैसे खुद कंज्यूम भी होती रहती है. एग्जैक्टली यही फॉस्फोरस पेशेंट है. He shines brightly, he loves very deeply, he feels intensely, but he burns out easily. That is why phosphorus is called as what? The phosphorus is called as the human torch, or also phosphorus is called as the open heart. Also, phosphorus is called as the sensitive soul. The sensitive soul. The human torch, open heart, the sensitive soul. So, moving to the phosphorus, just an introduction. Phosphorus is prepared from the chemical element phosphorus, belongs to the mineral kingdom, and predominantly it's of hemorrhagic diathesis, sodic and syphilitic tendencies. So what are the sphere of action? The sphere of action, almost it acts upon all the spheres: nervous system, respiratory system, blood, mucus, digestive tract, GI, mucous membrane, all. So if we will be seeing the theme of the remedy, so what will be the theme of the remedy of the phosphorus? That is sensitivity plus affection plus burning plus impression प्लस एग्जॉशन. बस इसी को याद रखो. अगर एक लाइन में, अगर एक लाइन में फॉस्फोरस को डिफाइन करना है,
तो हम कैसे डिफाइन करें? A very highly sensitive people who absorb everything from the environment and therefore become easily exhausted. That is phosphorus. Highly sensitive people who absorb everything from the environment and therefore become easily exhausted. So how to study phosphorus? phosphorus के symptoms को मत पढ़िए, उसको उसकी स्टोरी पढ़िए. Imagine a person who is very tall and slender, having fair complexion. Okay, इसको देखिए. A tall and slender, having fair complexion, intelligent, very creative, emotional, sympathetic, easily frightened. He loves company but cannot tolerate loneliness. यही phosphorus है. क्या बोला? टॉल, स्लेंडर, फेयर कॉम्प्लेक्सन, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, इमोशनल, सिंपैथेटिक, और फिर आपका इजीली फ्राइटेंड, लव्स कंपनी एंड कैन नॉट टॉलरेट लोनलीनेस. यही फॉस्फोरस का फाउंडेशन है. तो अब हम हेड टू टो सिम्टम्स नहीं पढ़ेंगे, हम फॉस्फोरस पेशेंट की लाइफ जर्नी पढ़ेंगे. सो लेट्स एंटर द ड्रग पिक्चर. आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, टेलीग्राम चैनल में आपको इसका कंप्लीट नोट मिल जाएगा. So do join the Telegram channel Medmastermind. So सबसे पहले फॉस्फोरस का माइंड समझिए. फॉस्फोरस जीता है तो कैसे जीता है? फॉस्फोरस दिल से जीता है, मतलब बाय हार्ट. ही लिव्स बाय हार्ट. वो अपने खुद वो दिल से जीता है. एक्सट्रीमली अफेक्शनेट, easily makes a friend, loves conversation and wants company constantly. लेकिन अगर फॉस्फोरस को अकेले किसी रूम में छोड़ दिया जाए तो उसका एंजाइटी स्टार्ट हो सकता है. दैट मीन्स ही इज हैविंग फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ घोस्ट एंड फियर ऑफ द फ्यूचर. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फॉस्फोरस पेशेंट दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है. किसी को रोता हुआ देखेगा तो खुद इमोशनल हो जाएगा. किसी की ट्रेजेडी, कोई दुख भरा कहानी सुनेगा तो उसकी रात की नींद खराब हो सकती है. ये इमोशनल स्पॉन्ज है जो खुद सब एब्जॉर्ब कर लेता है. सो हाउ इज अ क्लासिकल फॉस्फोरस पेशेंट? वेरी टॉल, लीन, डेलिकेट, नैरो चेस्ट, फाइन स्किन एंड रैपिड ग्रोथ. इसका एक गोल्डन की नोट है कि ही थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर. मतलब पेशेंट रिपीटेडली कोल्ड वाटर मांगता है. पेशेंट रिपीटेडली कोल्ड वाटर मांगता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वाटर स्टोमक में जैसे ही गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, वो वोमिट हो जाता है, सारा बाहर निकल के आ जाता है. द पेशेंट क्रेव्स और फॉर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉल्ट, फिश एंड रिफ्रेशिंग फूड. अगर रेस्पिरेटरी रेमेडीज का राजा कौन है वो पूछा जाए तो फॉस्फोरस ऊपर सबसे ऊपर वाले रेमेडीज में आता है. जस्ट थिंक ऑफ न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, हेमोपिसिस, ये सब आएगा. सो इसका एक और की नोट है कि फॉस्फोरस ब्लड को ब्राइट रेड कलर में रिप्रेजेंट करता है. One of the greatest hemorrhagic remedy. One of the greatest hemorrhagic remedy is phosphorus, having the hemorrhagic diathesis. Bleeding from the nose, lungs, stomach, uterus, and the blood is bright red, fresh and very profuse. इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है burning. Burning sensation everywhere. In your materia medica, you will be seeing the NAS trios of burning, that is arsenic album, phosphorus and sulfur. ये तीन, arsenic, phosphorus और sulfur. So phosphorus is one of them. Phosphorus खुद जलता है. Phosphorus burns. Burning in the stomach, chest, spine, hand or feet. Yet the patient wants cold thing. The complaint aggravated from evening, mental exertion, being alone, uh, the thunderstorm, better from company, sleep, cold drink, massage,
lying on the cold, lying on the left side. तो देखो, if if the natrum suffers silently, वो चुपके से रोता है, किसी को दिखाता नहीं. If pulsatilla seeks consolation, then phosphorus seeks connection. क्या बोला कि अगर नाइट्रम म्यूर वो सफर साइलेंटली, if pulsatilla seeks consolation, then phosphorus seeks connection. The core cry of phosphorus is, please don't leave me alone. This single sentence explains most of the mental picture of phosphorus. Just imagine a bright candle burning in a dark room. It gives light to everyone around it, but slowly melt itself away. And that candle is phosphorus. Remember? So, ये आपका खत्म हो गया phosphorus. Now moving to the doctrine of signature of the phosphorus. Now moving to the doctrine of signature. होम्योपैथी में डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है जिसमें माना जाता है कि नेचर किसी सब्सटेंस के अपीयरेंस में या बिहेवियर या प्रॉपर्टीज के थ्रू उसके मेडिसिनल एक्शन को इंडिकेट करती है. फॉस्फोरस के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली उसके ड्रग पिक्चर से कनेक्ट की जा सकती है. सो फर्स्ट इज दैट phosphorus glow in the darkness, that is luminescence. जैसे फॉस्फोरस डार्कनेस में लाइट प्रोड्यूस करता है वैसे ही फॉस्फोरस पर्सनालिटी भी अटेंशन अट्रैक्ट करता है. सेकेंड की बर्न्स, इट बर्न्स रैपिडली. पेशेंट भी जल्दी एक्साइट होता है. फॉस्फोरस बहुत इजीली इग्नाइट हो जाता है और रैपिडली बर्न करता है. सिमिलरली पेशेंट भी बहुत जल्दी एक्साइट होता है, जल्दी इमोशनल होता है और जल्दी एग्जॉस्ट भी होता है. नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी. फॉस्फोरस इज वेरी सेंसिटिव टू एयर. ये ओपन एयर में रिएक्ट करता है. सिमिलरली द फॉस्फोरस पेशेंट भी एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, एक्सटर्नल इम्प्रेशन को बहुत सेंसिटिव है. फॉस्फोरस फॉस्फोरस के प्रोड्यूस लाइट. फॉस्फोरस उसका नाम ग्रीक वर्ड फॉस्फोरस से आया है, मीनिंग लाइट बियरर, जो लाइट को कैरी करने वाला है. तो द मेंटल स्पीयर में फॉस्फोरस वेरी क्रिएटिव, इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. फॉस्फोरस कंज्यूम इटसेल्फ. फॉस्फोरस कंज्यूम इटसेल्फ व्हाइल गिविंग द लाइट. जब कैंडल जलती है तो दूसरों को रोशनी देती है लेकिन खुद ग्रेजुअली मेल्ट हो जाती है. सिमिलरली द पेशेंट बहुत दूसरों को देता है लव, सिंपैथी, केयर और इमोशनल सपोर्ट लेकिन खुद ग्रेजुअली एग्जॉस्ट हो जाता है. वाइट फॉस्फोरस जो है दैट कॉजेज द नेक्रोसिस एंड डिजेनरेशन. हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि वाइट फॉस्फोरस एक्सपोजर से बोन नेक्रोसिस या फॉसिजा देखा गया है. सिमिलरली ड्रग पिक्चर में डिस्ट्रक्टिव और डिजेनरेटिव टेंडेंसीज भी है. ये सब खत्म हो गया आपका. इसका प्रॉपर नोट में आपको मिल जाएगा इसके रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स भी हो सकता है. ठीक है, तो ये था आपका फॉस्फोरस का एक जनरल सा स्टोरी कैसा होता है. अब हम चलेंगे एलन की नोट की तरफ. ये देखो, ये आपका फॉस्फोरस का एक ड्रग पिक्चर हो गया. एंग्जाइटी इन द डार्कनेस या नाइट में, loving, affectionate, sympathetic desire, company and fears of being alone, mental exhaustion from study or work, intense thirst for cold water, but cold water vomited when it becomes warm, sensitive to light, sound, touch, odor, emotion, जितना भी external impression है, craves or desire for ice cream, sweet and salty food, hunger soon after eating. खाएगा, वो खाएगा, उल्टी कर देगा, फिर जाके खाएगा. ये क्या होता है? Burning sensation in chest and stomach, dry irritation, cough, hoarseness, coughing, blood, rust-colored sputum, gastritis, vomiting, diarrhea, painless and exhausting, tendency to bleeding, bright red, easy bruising, profuse bleeding, nervous debility, trembling, weakness, paralytic tendency, worse in the evening, better by company, sleep,
ये जनरली आपका एक, यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जो फॉस्फोरस है ना, ये आपका एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ठीक है? ये जनरली एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो फिर इसका लेफ्ट साइड में सारा कंप्लेन एग्रावेट करेगा। अगर सोएगा लेफ्ट साइड में, हेडेक भी इसका लेफ्ट साइडेड होगा, और ये एम्यूलेट होगा when sleeps on the right side. बस, so now moving to the Allen's keynote symptoms. तो Allen's keynote symptom एक बार देख लो। Important as phosphorus from the Allen's keynote, the essence or the drug the drug portrait is this: open, sensitive, sympathetic personality, having burning sensation throughout the body, with hemorrhagic tendency, nervous exertion and weakness, craves cold drinks and refreshing things, fearful, gloomy, impressionable. What is the constitution? Tall, slender person, fair skin, blonde hair, red hair, fine blonde red hair, delicate eyelashes, sanguine temperament, quick perception, young people growing too rapidly, elderly people with morning diarrhea. इसका मेंटल जनरल तो हमने देख लिया था कि वो है आपका नर्वस और वीकनेस, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, एपाथेटिक, आंसर स्लोली, अनविलिंग टू टॉक, वेरी ऑफ लाइफ, ग्लूमिंग, फोरबोर्डिंग्स। इसका जो फिजिकल जनरल है, ये इसका ग्रैंड की नोट है: बर्निंग, हैमरेज, वीकनेस, फीलिंग एम्प्टी एंड सेंसिटिवनेस। ओके, बर्निंग आपका कहाँ का होगा? स्पाइन में, स्कैपुला में, पाम, चेस्ट, लंग, होल बॉडी। हेमरेज, इसका जैसे बताया था मैंने कि प्रोफ्यूज हेमरेज होगा, फ्रीक्वेंट होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा, एवरी म्यूकस आउटलेट से होगा, स्मॉल वुंड, ब्लीड एक्सेसिवली। वीकनेस इसका, ये अंदर से वीक है, तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एंड नर्वस डेबिलिटी। फिर इसका ट्रेम्बलिंग भी होगा, feeling empty, weak all gone sensation in the head, chest, stomach and abdomen, entire abdomen, and sensitive to external impression. The patient desires for cold drinks, cold food, ice cream, juicy refreshing thing. The ice cream ameliorates the gastric complaint. इसका एक peculiar smell है, the perspiration of phosphorus smells like sulfur. Yes. देन द ग्रैंड की नोट, ये देखो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की कोल्ड वाटर वोमिटेड व्हेन इट बिकम्स वार्म इन द स्टोमक, बर्निंग सेंसेशन एवरीवेयर, हेमरेजिक टेंडेंसी, टॉल स्लेंडर सेंसिटिव सब्जेक्ट और पर्सन, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, क्रेविंग फॉर कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम, empty organ sensation, oversensitive to external impression, small wound, bleed profusely, better from cold food and cold drinks. ये तो आपका हो गया, ये 10 पॉइंट एंटायर फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, विच टचिंग ऑल द सिम्टम्स, ऑल द पर्टिकुलर फिजिकल मेंटल ऑल। ये 10 को पहले याद रख, तो ये फॉस्फोरस है। अगर कोई 10 सिम्टम्स ऐसे पूछ लिया तो यही कहना आपको है कि कोल्ड वाटर वोमिटेड व्हेन इट बिकम्स वाटर एंड हेमरेज, बर्निंग वगैरह, टेंडेंस, टॉल स्लेंडर, ग्रेट वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, क्रेविंग फॉर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन, ओवर सेंसिटिवनेस, स्मॉल वुंड एंड बेटर। फिर ये रहा आपका पर्टिकुलर। ये पर्टिकुलर में हेड में आपका जो डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, एलोपेशिया कंडीशन में आई में आपका ब्लू रिंग है आंखों की चारों तरफ, फिर आपका पफिक स्वेलिंग है आईलिड का, नोज में तो आपका जब हाथ पानी में डुबाया जाएगा तो स्नीजिंग और कोराइजा होगा, फेस में फिर उसका देखे थे हम फॉसी जॉ, फिर स्टोमक में वार्म वाटर वोमिट हो जाएगा, फिर आपका रिगर्जिटेशन, फिर हाथ वार्म वाटर में डालने से नोजियाटिक टेंडेंसी, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया है एज फ्रॉम ए हाइड्रेंट, इतना फोर्स से आएगा। फिर ओल्ड पीपल का मॉर्निंग डायरिया। फिर फीमेल में आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैनॉट टॉलरेट वाटर एंड वोमिट वाइल आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। फिर उसका चेस्ट कंप्लेन में आपका जो रेस्पिरेटरी, चेस्ट, थ्रोट पूरा एंटर, देखो इसको अलग अलग करके हमने लिखा है सो दैट कि ये बेहतर याद रखा जा सके। चेस्ट पेन, वोर्स फ्रॉम स्लाइटेस्ट प्रेशर, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, बताया था ये लेफ्ट साइड ड्रग है तो इसका लेफ्ट साइड में इसका वोर्स होता है, एज इफ समथिंग अ हेवी वेट इज ऑन द चेस्ट।
फिर इसका लैरिंग्स तो ड्राई रॉ वगैरह सब है। कफ कैसा है? द कफ बिकम वर्स ड्यूरिंग टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग ऑल एंड लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। फिर इसका हेमोप्टिसिस है। इसका इन सब में एग्रावेशन है कि इवनिंग बिफोर मिडनाइट, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एंड वेदर चेंजेस, लाइटेस्ट चिल, टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग, इन सब में इसका एग्रावेशन है। अगर जैसे लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड में अगर एग्रावेशन, तो लाइंग ऑन द राइट साइड में एमिलोरेशन। डार्क रूम में एमिलोरेशन है नहीं, ये गलत लिखा है शायद। फिर हाँ, ये गलत लिखा है। फिर कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, रबिंग, ये सब में। एंड it is the complementary, the relationship complementary to arsenic alb and follows well after what follows well calcareous carbon China. And phosphorus is a very good antidote to the bad effect of iodine and excess use of salt. So phosphorus is a tall, slender, sensitive, burning, hemorrhage, weakness, cold drinks and ice cream craving, empty feeling sensation, worse on the left side, better from cold things. इसको पूरा याद रखो। देखो, एक तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, दूसरा ये, इनको याद रखो। पूरा फॉस्फोरस इसमें आ जाएगा। बाकी कुछ कुछ पर्टिकुलर उनके अंदर घुसेड़ देना, आपका फॉस्फोरस का ड्रग पिक्चर बन जाएगा। कितना आसान से, कितना अच्छे से याद रहेगा। ये पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में दिया गया है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया पार्ट पार्ट करके लिखा गया है। इंटर एलेंस की नोट इसी में है। एंड इट इज़ योर फ्रॉम द बोरिक। बोरिक में बस हाँ वही इतना है, ज़्यादा इसमें से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे हम सेंसिटिवनेस तो देख लिया, बर्निंग, वीकनेस, फेंटिंग, एग्जॉस्टिंग, हैमरेज, ये सब तो देख लिया हमने। फिर हमने उसके क्रेविंग वगैरह देख लिया, एम्प्टी फीलिंग भी देख लिया। अच्छा, ये देखो इसका क्या होता है ना, थोड़ा फिर इसका एक है क्लियर पॉइंट स्टेज, इसको याद रखना। बाकी तो हमने देख लिया कि इजीली स्टार्टल, फियरफुल, लो स्पिरिट, ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन, फिर इम्प्रेशन को सेंसिटिव है, लॉस ऑफ मेमोरी, एक्सेप्टेबल, रेस्टलेस, हाइपर सेंसिटिव, ये सब है। इसका थेरापेटिक यूज एक बार देख लीजिए। इसका जो थेरापेटिक यूज है ना, हैमरेज फ्रॉम एनी आउटलेट, न्यूमोनिया, कंजेशन ऑफ लंग्स के लिए दिया जा सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फैटी डिजेनरेशन ऑफ द लीवर, एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रैल्जिया, नर्वस डेबिलिटी, एक्सॉशन, डायरिया विथ वीकनेस, नेक्रोसिस ऑफ द लोअर जॉ, क्लर्जीमैन सोर थ्रोट, जो पब्लिक स्पीकर से उनका, डिजीज फ्रॉम द लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, ये बोरिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। द थेरापेटिक यूजेस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है बोरिक में, ये स्पेशल करके देता है। फिर इसका क्लिनिकल इंडिकेशन, यही थेरापेटिक यूज और जो क्लिनिकल इंडिकेशन, इसी को याद रखना तो कंपलसरी है बोरिक से। हाँ, फिर ये रहा बोरिक का एग्जाम्पल्स। Phosphorus is a remedy of degeneration, act profoundly on the blood, lung, liver, nerve, characteristic craving for cold water and ice. Water is vomited when it becomes warm in the stomach. Tall, slender, rapidly growing young people. Great remedy for hemorrhage, pneumonia, tuberculosis and fatty degeneration. Worse while lying on the left side. Better from cold drink, cold food and ice. Bus, this completes your phosphorus. एंड आई थिंक इतने बार सुन के बहुत सा पार्ट तो रट चुका होगा। बस ये नोट्स जब मिलेगा तो एक बार रीडिंग कर लेना, एक दो बार बस रीडिंग कर लेना, कंप्लीट याद रह जाएगा। सो विद दिस वी रिमेन, थैंक यू।